Hello dear students, this is the second part of RNA sequencing methods. I request all the students to observe the first part of RNA sequencing so that you can understand this second part, which is correlated with the first part of RNA sequencing lecture. In first part, we have understood the definition of RNA sequencing. That is, RNA sequencing is defined as, in this, we identify the sequence of nucleotides present in the RNA. Means, and it is done through high throughput approach, high throughput protocols, and by using this RNA sequencing we can study the transcriptome. What is transcriptome? That already we have discussed in our first part of lecture. Then we have studied the applications of RNA sequencing. After that we have shown some steps of protocol for RNA sequencing, like extraction. First step हमने देखी extraction of RNA from the cell by using detergents, and then separation by using chromatography technique. It was like chromatography technique, not actually chromatography. Second step was construction of cDNA library, and then selection of our target RNA which we want to sequence. Now in this lecture we will discuss about the remaining step, that is adapter ligation and indexing, and the last one is sequencing. So let's begin with the adapter ligation and indexing. What are adapters? Adapters, these are the short synthetic oligonucleotides that are attached to the end of cDNA strand. ठीक है, adapters क्या है? ये short sequence होते हैं जो हम lab में भी construct कर सकते हैं. Okay, so these are the oligonucleotide sequence. These are the nucleotide sequence which are constructed in lab. तो जब हम adapter बनाते हैं उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस भी हम बनाते हैं. ओके, सो एडेप्टर्स ये शॉर्ट सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड की जो हमारे cDNA स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री हो, जिसके वजह से वो बाइंड हो सके. ठीक है, सो दैट कैन अटैच टू दी cDNA strands. एडेप्टर्स एक्चुअली दे परफॉर्म दी टू मेन फंक्शन. पहला फंक्शन है बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्ट फॉर सीक्वेंसिंग. जो हमारा ट्रांसक्रिप्ट है, अब हमारा ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर mRNA है. ओके, सो टू हेल्प और टू बाइंड दिस ट्रांसक्रिप्ट फॉर द सीक्वेंसिंग पर्पस. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन. सेकेंड फंक्शन इज इट प्रोवाइड्स द प्राइमर बाइंडिंग साइट. ठीक है, ये क्या करता है? प्राइमर बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, मतलब प्राइमर्स को बाइंड होने की साइट देता है. ओके, सो दैट इज द सेकेंड फंक्शन. फर्स्ट इज binding transcript for sequencing and second is primer binding site. ओके, तो अभी हमने एडेप्टर बनाया है. एडेप्टर इट इज द शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो हमारे cDNA को कॉम्प्लीमेंट्री हो. एंड देन आफ्टर एडेप्टर्स, दिस आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ द एडेप्टर्स, ये एडेप्टर्स बाइंड किए जाते हैं टू आवर टारगेट मॉलिक्यूल. ठीक है, so this after ligation of adapters to this cDNA molecule, जो हमने cDNA molecule construct किया है, ये adapters bind होते हैं okay to the cDNA molecule, and after binding of this adapters to the cDNA molecule there is process of indexing. indexing को ही हम बोलते हैं barcoding. indexing it actually involves PCR amplification of the molecules while adding a unique sequence. Actually indexing क्या है? indexing
ये एक यूनिक सीक्वेंस है. ओके, इट इज अ यूनिक सीक्वेंस कॉल्ड बारकोड to the transcripts. Means what? When our molecule is amplified, तब हमारे टारगेट मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक यूनिक सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट यूनिक सीक्वेंस, कि वो हाईलाइट हो. ओके, उस यूनिक सीक्वेंस को हम इंडेक्सिंग बोलते हैं या फिर बारकोडिंग बोलते हैं. ओके, एक लेबल की तरह. इन शॉर्ट ये एक लेबल की तरह काम करता है, एक टैग की तरह काम करता है. ओके, टू जस्ट आइडेंटिफाई. इट डजंट फ्लोरोसेंस, ये कोई फ्लोरोसेंट नहीं प्रोड्यूस करता, सिर्फ ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज करते. एक यूनिक सीक्वेंस होती है बारकोड की तरह जो हमारी टारगेट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करें. दैट इज जस्ट फंक्शन ऑफ दिस इंडेक्सिंग और बारकोडिंग. मीन्स ड्यूरिंग एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस पूरा हमारा जीन ये एम्प्लीफाई होगा, लेकिन हमें सिर्फ टारगेट सीक्वेंस एम्प्लीफाई करना है. तो टारगेट सीक्वेंस कौन सी है वो पूरे जीन में, ओके, वो पूरे जीन में टारगेट सीक्वेंस कौन सी है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये इंडेक्सिंग या बारकोडिंग यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से हमें हाईलाइट हो सके, आसानी से वो आइडेंटिफाई हो सके. जस्ट दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस इंडेक्सिंग और बारकोडिंग, एंड दैट इज इमीडिएटली डन आफ्टर द attachment of linkers to the cDNA. So next, this barcode, they allows the transcripts to be identified during the sequencing process after pulling samples. Now what are these pulling samples? Pulling ये एक ऐसी process है which involves mixing of different samples together at a known concentration. बहुत सारे सैम्पल्स हम मिक्स करते हैं, लेकिन कितने अमाउंट में हम मिक्स कर रहे हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये हमें नोन होता है. ओके, सो दैट इज द पुलिंग प्रोसेस. यहाँ पर सैम्पल्स कौन से? ऑल आवर जो हमने cDNA लाइब्रेरी में कंस्ट्रक्ट किए हैं, दैट इज आवर सैम्पल. सो आफ्टर एडेप्टर लाइगेशन एंड इंडेक्सिंग सैम्पल्स ये रेडी हो जाते हैं सिक्वेंसिंग के लिए. तो स्टेप्स क्या है? अब तक हमने क्या क्या देखा? दैट आर द स्टेप्स. सो फर्स्ट स्टेप इज द प्रोसेस ऑफ एडेप्टर लाइगेशन एंड इंडेक्सिंग. एडेप्टर्स बाइंड हो जाते हैं, उसके बाद इंडेक्सिंग होती है विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स टू आवर टारगेट cDNA मॉलिक्यूल. तो जो हमारा टारगेट cDNA मॉलिक्यूल है उसको जाकर हमारे एडेप्टर्स बाइंड हो चुके हैं. एडेप्टर क्या है? ये शॉर्ट स्ट्रेच है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो हमारे टारगेट सीक्वेंस को कॉम्प्लीमेंट्री है, जो हमारे cDNA को कॉम्प्लीमेंट्री है. ओके, टारगेट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने के लिए होल जीनोम में से हम बारकोड यूज करते हैं या फिर इंडेक्सिंग यूज करते हैं, जो खुद एक सीक्वेंस होती है शॉर्ट. नेक्स्ट स्टेप इज एन एडेप्टर विद द यूनिक बारकोड इज लाइगेटेड. अब एडेप्टर विद द यूनिक बारकोड इज लाइगेटेड टू द cDNA टारगेट. मीन्स we use the barcode. As I told that barcode is a sequence and it act as the adapter. तो वो adapter कौन सा है? adapter है वो Illumina. Okay, this is the adapter. जो हम adapter मैंने आपको कहा that we can actually prepare in the labs also. Okay, and then barcode हम करते हैं, barcode highlight के लिए हमारी target sequence. और एग्जाम्पल दिए गए हैं ऑफ द एडेप्टर, दैट इज Illumina एडेप्टर. वाई Illumina एडेप्टर? बिकॉज हम सिक्वेंसिंग Illumina से ही देखने वाले हैं, तो यहाँ पर Illumina एडेप्टर से एग्जाम्पल्स हैं P5 एंड P7. ओके, दिस एडेप्टर्स वी कैन कंस्ट्रक्ट इन लैब. P5 एंड P7 दे कैन बाइंड टू 5' एंड और 3' एंड. ओके, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि P5 ये 5 को ही बाइंड होगा. इट इज़ नॉट स्पेसिफिक. इट कैन बाइंड रैंडमली टू एनी एंड, आइदर 5' एंड और 3' एंड. ओके, सो दिस डिपेंड ऑन द प्रिपरेशन किट. एक्चुअली किट अवेलेबल होते हैं RNA सिक्वेंसिंग, जो प्री स्टेप्स होते हैं, जो पहले के स्टेप्स होते हैं, उसके लिए किट्स अवेलेबल होते हैं. सो एडेप्टर्स के एग्जाम्पल है Illumina एडेप्टर्स के P5 और P7. नेक्स्ट द अदर एडेप्टर. अगर एक एडेप्टर ये 5' को बाइंड हो चुका है तो दूसरा एडेप्टर कंस्ट्रक्ट किया जाता है फॉर बाइंडिंग टू द अदर एंड.
So then last step is PCR amplification. Okay, cDNA and the adapters are PCR amplified to increase the concentration of that cDNA. Okay, तो यहाँ पर वो स्टेप्स दिखाई गई है. दिस इज आवर cDNA. उसके बाद जो हमारा ग्रीन शेड में दिखाया है, इट इज आवर टारगेट cDNA मॉलिक्यूल विच वी वांट टू एम्पलीफाई. इट एक्चुअली कंटेन्स दी, ये cDNA मॉलिक्यूल हमने RNA टेम्पलेट से ही कंस्ट्रक्ट किया है. ओके, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के लेक्चर में एंडिंग में बताया था. सो दिस इज द टारगेट cDNA मॉलिक्यूल. और जो ब्लू कलर में शो किए गए दैट आर दी बारकोड्स एंड द पिंक शेड आर दी एडेप्टर्स. ओके, तो पिंक शेड में और येलो शेड में जो दिखाए हैं वो है एडेप्टर्स एंड फाइनली दे आर लाइगेटेड टुगेदर. ओके, P5 is shown in yellow color, P7 is shown in pink color, blue color is our barcode which is highlighting and green color is our target sequence. तो अभी एडेप्टर प्लस एडेप्टर लाइगेशन और इंडेक्सिंग ये प्रोसेस हो चुकी है. नाउ इट्स टाइम फॉर द सिक्वेंसिंग. ओके, सो सिक्वेंसिंग में देर आर डिफरेंट मशीन्स विच आर यूज फॉर द सिक्वेंसिंग पर्पज. लाइक इल्यूमिना इज देयर, आयन टॉरेंट है. आयन टॉरेंट ये डीएनए के लिए भी यूज की जाती है. देन रोची 454 इज देयर. देन पैक बायो. दिस आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज फॉर द सिक्वेंसिंग. एक्चुअली हम जो सिक्वेंसिंग देख रहे हैं ये हाई थ्रूपुट अप्रोच मेथड है. सो ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है विच इज सॉफ्टवेयर एक्चुअली गिव्स द सीक्वेंस. ओके, तो ये एनालिटिकल या फिर ये कंप्यूटराइज्ड हमें सब इंफॉर्मेशन मिलती है डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर. सो सिक्वेंसिंग डिफरेंट टाइप्स है. तो हम जो देखने वाले दैट इज इल्यूमिना. अपार्ट फ्रॉम दैट PacBio platform is also been used. So we will focus on the Illumina sequencing by synthesis technology. तो उसमें जो main output है, okay, there are two parts of sequencing by synthesis. तो दो parts है sequencing के. First है cluster generation and second is actual sequencing process. Then this cluster generation it is followed by the actual sequencing process. Let's see cluster generation. Cluster generation के बारे में देखते हैं. Directly we will come towards the diagram. So yes, cluster means it is a bunch. Okay, cluster ये bunch होते हैं. I will show you the diagram of that cluster. So our sample is now indexed. Okay, हमारा sample को adapter link हो चुका है, वो barcode भी हो चुका है. Okay, so now it's time to add that sample into the sequencer machine. Okay, now it's time to add the sample for in the sequencer machine. So directly हम sample नहीं add नहीं कर सकते. तो we use the flow cell. हम क्या use करते हैं? We use the flow cell in the sequencer which is present in the sequencer. Now what is this flow cell? Flow cell की डायग्राम यहाँ पर. ओके, इट इज दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्लो सेल. यस, दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्लो सेल. इट इज अ ग्लास स्लाइड. क्या है इसका कंस्ट्रक्शन? इट इज अ ग्लास स्लाइड विथ 8 चैनल्स. ये जो लाइंस दिख रही है वर्टिकल लाइंस. सो दिस लाइंस आर नोन एज द चैनल्स और लेंस. तो ये लाइंस कितनी होती है? स्टैंडर्ड 8 लाइंस होती है. सो दिस इज द ग्लास स्लाइड विथ 8 चैनल्स और लेंस. ईच चैनल और ईच लेन is randomly coated with a lawn of oligos that are complementary to the library adapters. तो ये जो हर एक लेन होती है, इन लेन के अंदर हमारे कॉम्प्लीमेंट्री ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. ओके, सो इस लेन के अंदर हमारे ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं हमारे लाइब्रेरी से. जो हमने लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट की है cDNA लाइब्रेरी, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इस लेंस में होते हैं. ठीक है, सो दैट इज बीन देयर. सो दैट आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू द लाइब्रेरी एडेप्टर्स. एंड क्लस्टर जनरेशन जो होती है इट एक्चुअली ऑकर्स ऑन दिस apparatus ऑन द फ्लो सेल. ओके, एंड दिस लेन इज कोटेड विद द oligos that are complementary to our library constructions.
जो हमने एडेप्टर्स बनाए थे, ओके, व्हाट एडेप्टर्स वी हैव मेड इन द लैब, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वी ऑल्सो मेक द complementary sequence to that adapter, and that complementary sequence are added into this lens or they are present onto this lens. Okay, so that is ये apparatus को ही हम बोलते हैं flow cell, ठीक है, which consist of the 8 lawns, and उस lawns में होते हैं हमारे oligonucleotides जो हमारे library adapter के complementary होती है. Okay, so that is the instrument known as flow cell. तो ये जो आप देख रहे हैं, ओके, दिस पॉइंटेड वॉट एवर यू आर सीइंग, ये हर एक लेन जूम करके दिखाइए. ये जो यहाँ पर लेन है वो जूम करके दिखाइए. और ये जो पॉइंटेड नीडल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट आर योर स्ट्रैंड्स. ओके, ये आपके स्ट्रैंड्स हैं विच आर मेड अप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स. सो दैट इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लो सेल. नेक्स्ट इज क्लस्टर. क्लस्टर क्या है? दिस आर द ब्राइट स्पॉट्स ऑन अ इमेज. हर क्लस्टर मीन्स बंच और ग्रुप. तो हर क्लस्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज ऑफ सेम डीएनए स्ट्रैंड. ओके, इट रिप्रेजेंट्स थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज ऑफ द सेम डीएनए स्ट्रैंड्स. सो वी विल सी द स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. यस, तो अभी हमारे पास क्या है? वी हैव our cDNA और our target DNA that is already barcoded. ठीक है, हमारे पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो ऑलरेडी बारकोडेड है, ओके, और इंडेक्स्ड है. अब ये जो हमारा टारगेट जीन है और टारगेट सैंपल है, ये ऐड किया जाता है. ओके, दिस आर द सैंपल्स. ओके, ये हमारे सैंपल्स हैं जो barcoded है. So these samples are added to this flow cell in the Illumina sequencer. ये flow cell है, ये flow cell Illumina का पार्ट है, ठीक है. तो ये हमारा सैंपल ऐड किया जाता है into this flow cell which already consists of complementary oligonucleotides which I have already told you. So this is the first step. Secondly, क्या दिखाया है? सैम्पल्स एडिशन के बाद, दिस इज द सैम्पल एडिशन एंड बाइंडिंग टू दिस चिप और बाइंडिंग टू द फ्लो सेल. सो हियर इज द बाइंडिंग. सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप है एडिशन, सेकेंड स्टेप है बाइंडिंग. तो क्या होता है? हमारे एडेप्टर्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस प्रेजेंट इन द सेल, तो ये जाकर बाइंड हो जाएंगे. ओके, जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है उन्हें जाकर ये सारे हमारे सैंपल बाइंड हो जाएंगे. इन द थर्ड स्टेप व्हाट विल हैपन? फ्लो सेल ऑलिगो सीक्वेंस, दिस सर्व्स एज अ प्राइमर. ओके, ये जो शॉर्ट ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो फ्लो सेल में लोकेटेड है, दे विल सर्व एज अ प्राइमर फॉर अ polymerase to create a complement of this fragment. ओके, तो ये जो सिंगल स्टैंडर्ड है जिसको हमारे मीन्स दिस आर दी आवर target sequence and this target sequence are bind to the short oligonucleotide sequence which are present onto this flow cell. तो ये जो short oligonucleotide sequence है वो प्राइमर की तरह काम करेंगे and then DNA polymerase will be added and there will be growth of this new strand with the help of the primers. तो दो स्ट्रैंड हमें मिल गए. ओके, सो दिस डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल, ये जो डबल स्ट्रैंड हमें मॉलिक्यूल मिल गया, अब बाद में ये डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल डीनेचर किया जाता है. ओके, दिस डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल इज डीनेचर्ड एंड जो ओरिजिनल स्ट्रैंड है, जो हमारा पुराना स्ट्रैंड था, मीन्स जो सैम्पल स्ट्रैंड था, इट इज वॉश्ड अवे. ओके, सो द ओल्ड स्ट्रैंड इज वॉश्ड अवे और जो नया सिंथेसाइज हुआ यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर के हेल्प से, वो स्ट्रैंड सिर्फ यहाँ पर रखा जाता है. ओके, पुराना स्ट्रैंड it has been washed out, old strand is washed out and new synthesized strand is bound to this flow cell. यहाँ पर सिर्फ कौन सा strand रहता है? फिर new strand रहता है. Okay, so this is the fourth step called as the washing. अब हमारे पास एक ही strand है. Okay, नया strand जो प्राइमर की हेल्प से सिंथेसाइज हुआ है. प्राइमर मतलब
ये जो शॉर्ट सीक्वेंस है यही यहाँ पर प्राइमर की तरह काम करते हैं। उसके बाद क्या होगा, दिस न्यू स्ट्रैंड गेट फोल्ड, ये जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ है इट विल गेट फोल्ड एंड एडेप्टर रीजन बाइंड्स टू द अदर काइंड ऑफ द स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ है इट विल गेट फोल्ड। अब दोनों एंड में एडेप्टर है, 5' एंड में भी एडेप्टर है और 3' एंड में भी एडेप्टर है। तो ये जब बाइंड होगा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस दूसरे प्राइमर के साथ, सो दिस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जो बाइंड है यहाँ पर इट विल सर्व एज अ प्राइमर। फिर से सेकेंड स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, ओके, अगेन न्यू स्ट्रैंड विल गेट सिंथेसाइज्ड। नाउ देयर इज डबल स्ट्रैंड ब्रिज। अब यहाँ पर क्या है, डबल स्ट्रैंड ब्रिज है, ओके, सो देयर इज डबल स्ट्रैंडेड ब्रिज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। द ब्रिज, ये जो दो ब्रिज है ये बाद में डीनेचर हो जाता है, ओके, ये टूट जाता है। द ब्रिज इज देन डीनेचर्ड रिजल्टिंग इन 2 सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज ऑफ आवर टारगेट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमें 2 सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज मिलते हैं ऑफ आवर टारगेट मॉलिक्यूल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रिज एम्प्लीफिकेशन एंड इट इज रिपीटेड मेनी टाइम्स टू कंस्ट्रक्ट मेनी मॉलिक्यूल्स लाइक एम्प्लीफिकेशन। मतलब यहाँ पर क्या होता है, सिंपल प्रोसेस है, हमारे टारगेट मॉलिक्यूल्स हमने ऐड किए हैं और ये फ्लो सेल है जहाँ पर ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है, शॉर्ट स्ट्रेच, ओके, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है जो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट है हमारे एडेप्टर को कॉम्प्लीमेंट है, तो ये बाइंड होंगे, ओके। आफ्टर बाइंडिंग ये जो शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है फ्लो सेल में दे विल सर्व एज अ प्राइमर, ग्रो होगी न्यू स्ट्रैंड, उसके बाद डीनेचर होगा, ओके, जो पुराना स्ट्रैंड था वो वॉश आउट होगा और जो नया स्ट्रैंड है वो वहाँ पर रहेगा और नए स्ट्रैंड को ही सेकेंड एंड को एडेप्टर अटैच्ड है इट विल गेट फोल्ड, ओके। आफ्टर फोल्डिंग अगेन दिस ये जो प्राइमर है, ओके, दिस प्राइमर विल एक्ट एज अ, या फिर ये जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है वही एज अ प्राइमर एक्ट होंगे, सेकेंड स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, ब्रेक होंगे ये दोनों स्ट्रैंड और ये दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड हमें सेपरेटेड मिलेंगे, ओके। सो दिस इज, ये प्रोसेस बार बार रिपीट की जाती है एंड इट इज नोन एज द ब्रिज एम्प्लीफिकेशन। नाउ हाउ डज सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस वर्क, जो हमारी सेकेंड मेथड है सीक्वेंसिंग फॉलोड बाय सिंथेसिस, ये कैसे काम करती है। अब हमारे पास 2 सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज हैं, ओके, हमारे सैंपल जीन के हमारे पास 2 सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज है। अब जो रिवर्स स्टैंड है, रिवर्स स्टैंड मतलब 3' to 5', ओके, जो रिवर्स स्टैंड है दैट इज 3' to 5', ये क्लिप किया जाता है, दिस इज बिन क्लिप्ड एंड वॉश्ड अवे, ठीक है, ये क्लिप किया जाता है और वॉश किया जाता है। अब हमारे पास एक ही स्ट्रैंड है 5' to 3', ओके। नाउ दिस रिवर्स स्ट्रैंड आर क्लिप्ड एंड वॉश्ड अवे, ये जो रिवर्स स्ट्रैंड है ये क्या किया जाता है, क्लिप किया जाता है, वॉश किया जाता है, मतलब 3' to 5' एंड। अब हमारे पास एक ही स्ट्रैंड है 5' to 3'। नाउ दिस सीक्वेंसिंग इट बिगिंस विद द एक्सटेंशन ऑफ एडिशन ऑफ प्राइमर्स। अब हम क्या करते हैं, प्राइमर्स ऐड करते हैं, ओके, वी ऐड द प्राइमर्स। व्हाई वी ऐड द प्राइमर्स, टू रीड द सीक्वेंस, सीक्वेंस एक्चुअली कौन सी है ये रीड करने के लिए हम प्राइमर्स ऐड करते हैं। आफ्टर दैट वी ऐड द फ्लोरोसेंट टैग कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स, हम क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट टैग कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं टू द चेन 1 बेस एट अ 1 टाइम। ये ध्यान रखते हैं कि एक बेस 1 बेस मस्ट बी एडेड एट अ 1 टाइम, ओके। सो डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो सी हमारे पास 2 स्टैंड्स थे, ओके। अब उसे क्लस्टर क्यों बोला जाता है, बिकॉज दैट प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन और इससे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं लाइक अ क्लस्टर, ओके। तो वो क्लस्टर क्रिएट हो जाता है ऑन टू दैट फ्लो सेल, फ्लो सेल के ऊपर क्लस्टर क्रिएट हो जाता है। अब हमारे पास 2 स्ट्रैंड थे, तो एक स्ट्रैंड क्या हुआ है, वॉश हो चुका है। कौन सा स्ट्रैंड वॉश हुआ है, रिवर्स स्ट्रैंड, मीन्स 3' to 5' एंड का जो स्ट्रैंड था वो वॉश हो चुका है। अब हमारे पास एक ही स्ट्रैंड है, कौन सा स्ट्रैंड है, 5' to 3' एंड दैट इज अवर टेम्पलेट स्ट्रैंड, ओके। ये हमारा क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ओके।
and to that template strand we add the primer. हम क्या ऐड करते हैं, प्राइमर ऐड करते हैं. और additionally we add the nucleotides, फ्लोरोसेंट टैग कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हम ऐड करते हैं टू दिस चेन एंड वी ऐड जस्ट वन बेस एट वन टाइम. ठीक है, प्राइमर ऐड किया है और उसके बाद हमने एडिनाइन ऐड किया है विच इज फ्लोरोसेंट लेबल्ड. तो अब ये एडिनाइन क्या करेगा, इट विल गेट बाइंड टू दी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कॉल्ड थाइमाइन. ओके, उसके बाद आफ्टर एडिशन ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड एज इट इज फ्लोरोसेंट इट विल इमिट लाइट. ये क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा, लाइट एक्साइट करेगा. ओके, तो लाइट एक्साइट करेगा एंड देन इट विल गिव द सिग्नल, फ्लोरोसेंट सिग्नल इज इमिटेड एंड सीक्वेंसिंग मशीन जो है, ओके, सीक्वेंसिंग मशीन को वो सिग्नल मिलेगा. जैसे ही लाइट इमिट होगी सिग्नल रीच होगा और वो सिग्नल उस मशीन को मिलेगा एंड देन it will allow the computer to determine which base was added to the chain which is referred as base call. ठीक है, कंप्यूटर वो डिटरमाइन करेगा, सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर वो डिटरमाइन करेगा कि कौन सा बेस ऐड किया है. ओके, कौन सा बेस ऐड किया है, विच बेस इज एडेड. एक्चुअली हम उस ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है हम सारे फ्लोरोसेंट लेबल न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देते हैं, बट कौन एक एक जाकर उसको बाइंड होता है. कौन सा बाइंड होगा, डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट्री ही बाइंड होगा, लेकिन हमें नहीं पता कौन सा है वो, तो हमारा कंप्यूटर वो डिटेक्ट करता है. ठीक है, एंड दैट डिटेक्शन, बेस डिटेक्शन, उसे हम बोलेंगे बेस डिटेक्शन. तो उस बेस डिटेक्शन को इट इज रेफर्ड एज बेस कॉल. इट इज रेफर्ड एज बेस कॉल. मीन्स व्हाट वी हैव डन, we have added the nucleotides, all the nucleotides that were fluorescent labeled. एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा. अब सपोज एडिनाइन पहले ऐड हुआ है एंड इट इज फ्लोरोसेंट लेबल्ड. तो फ्लोरोसेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट इमिट करता है. व्हेन इट इमिट्स द लाइट देयर इज पासेज ऑफ सिग्नल. वो सिग्नल डिटेक्ट करेगा कंप्यूटर एंड कंप्यूटर विल डिटरमाइन विच बेस इज एडेड एंड दैट इज रेफर्ड एज बेस कॉल. ठीक है, सो आफ्टर मेकिंग फर्स्ट बेस कॉल फिर सेकेंड न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा. ओके, सो ऐसे न्यूक्लियोटाइड एडिशन होंगे और हमारा कंप्यूटर सिग्नल रीड करेगा एंड इट विल डिटरमाइन विच न्यूक्लियोटाइड इज एडेड. तो इस तरीके से ये सिक्वेंसिंग परफॉर्म की जाती है. ओके, सो हाउ यू विल डू द एनालिसिस. एनालिसिस इज डन बाय द सॉफ्टवेयर लाइक SOAP एंड BLAT. SOAP stands for Short Oligonucleotide Alignment Program. It is a program which is designed to handle huge amount of short reads generated by the sequencing. मतलब ये क्या करता है, ये जो शॉर्ट सीक्वेंसेस है, ओके, ये सीक्वेंस करता है या एनालाइज करता है. ओके, इट एनालाइज द सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन टू दैट जीन. सेकेंड इज BLAT. BLAT it is related to the BLASTA. जैसे FASTA, BLASTA ये टूल होते हैं. ओके, सो बेसिक लोकल अलाइनमेंट टूल, ये जो BLAST टूल है, BLAT and BLAST, दिस बोथ आर रिलेटेड. इट हेल्प्स इन द मैपिंग गैप रीड्स. जो जीनोम सीक्वेंस है उसको ये रीड करता है. सो दिस बोथ प्रोग्राम्स helps for the sequencing. Okay, so that is all about the sequencing method, the analysis. समराइज करते कि हमने दोनों पार्ट्स में क्या देखा. सबसे पहले ये सेल है, कौन सी भी सेल से हम हमारा RNA एक्सट्रैक्ट करेंगे, आइसोलेट करेंगे. ओके, अगर हम यूकैरियोटिक RNA करते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ दी फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल से अगर हम आइसोलेट करते हैं. अगर हम mRNA आइसोलेट कर रहे हैं तो mRNA ये इट कंसिस्ट ऑफ 3' पॉली A एंड 5' कैपिंग. ठीक है, तो mRNA का हम कन्वर्जन करते हैं टू दी cDNA बाय यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. आफ्टरवर्ड्स वी ऐड दी, ये जो पॉली A और 5' कैपिंग है, इट इज़ द सिग्नल दैट आवर mRNA इज मैच्योर्ड. ओके, सो दैट मैच्योर्ड mRNA इज यूज फॉर फर्दर पर्पजेस दैट इज बिन देयर. फिर mRNA का कन्वर्जन हम cDNA में करते हैं, मीन्स वी कंस्ट्रक्ट द लाइब्रेरी बाय यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एंड देन वी ऐड द एडेप्टर्स
हमने एग्जांपल्स देखे थे P5 P7 विच आर इल्यूमिना एडेप्टर्स, ओके, जो हमारी टेक्निक है इल्यूमिना, तो उसके ही हमने एडेप्टर्स यूज़ किए हैं P5 P7. देन वी हैव एम्पलीफाइड दैट, और उसके बाद हम सिक्वेंसिंग करते हैं थ्रू दिस इल्यूमिना मशीन फ्लो सेल का यूज़ करके, फ्लो सेल, एंड ऑन टू दैट फ्लो सेल वी क्रिएट दी क्लस्टर्स, ओके. रॉ डाटा एनालाइज किया जाता है बाय यूजिंग द टेक सॉफ्टवेयर्स लाइक ब्लास्ट एंड सो, और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है. सो दिस आर दी सॉफ्टवेयर. बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब ये कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे जीन सीक्वेंस रीड करते हैं, जीन सीक्वेंस डिटेक्ट करते हैं, बोथ वांटेड सीक्वेंस एंड अनवांटेड सीक्वेंस, वो टारगेट सीक्वेंस और जो रिमेनिंग सीक्वेंस है वो भी, ठीक है, दोनों सीक्वेंस ये रीड आउट करते हैं. सो दैट इज नोन एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स. सो दिस वाज ऑल द स्टेप्स related to RNA sequencing. Thank you.